جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اسی کو کاٹتا ہے، یہ جہاں پر کھاتا ہے وہاں پر ہی موت دیتا ہے۔ ونس اگین وقت اسرائیل کا نمبر دوسرا ہوا ہے اور اس بندے کا نمبر پہلا ہوا ہے گالیاں کھانے میں۔ اچھا جی، پبلک سروس، تمہارے ویوز نہیں آتے تھے، تمہارے گھر میں فرنیچر نہیں تھا، تمہیں ہم نے وہ چیزیں دکھائی جو تم پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج تم ہمیں ہی تنقید کا ذریعہ بنا رہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ نے ملاحظہ فرما لیا ویڈیوز میں، ذوالقرنین سکندر نے۔ یہ تو ابھی صرف ٹریلر ہے، آگے بڑے بڑے انکشافات اور چٹا چٹا کھلنا والا ہے۔ یہ لڑائی ہے 2 ٹک ٹاکروں کی، بلکہ 3 تیسری شخصیت کی بھی انٹری ہو چکی ہے، جو ویڈیوز میں آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ مشہور و معروف ٹک ٹاکر کنول آفتاب کے اوپر جس طرح رجب بٹ نے اس طرح الفاظ کسے اور آنٹی بولا، اس کے بعد اس جنگل لگی آگ کو طول کون دے رہا ہے اور کون اٹھا رہا ہے؟ کیا یہ ویوز کا چکر ہے؟ اور اس کے بعد رجب بٹ کی شادی ہونا، اس کے بعد ڈیورس ہونا، ٹک ٹاکر کنول آفتاب نے کیا بولا، بڑے بڑے انکشافات آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیوز میں کیا کیا تہلکہ خیز انکشافات ہیں۔ اور اس کے بعد ذوالقرنین سکندر نے ایک اور بڑا انکشاف کر دیا ہے، 50 لاکھ ڈالے والی، اور جو میچ ہوا تھا انس والا۔ اور ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگے تو لازمی لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ اب رجب بٹ کی توپوں کا رخ ذوالقرنین اور کنول آفتاب کی جانب ہو چکا ہے۔ جس طرح اون شیخ کے ساتھ سسرالیوں کے ساتھ اختلافات تھے، اس کے بعد اب اس نے اپنی توپوں کا رخ موڑ لیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مبصر امان حاضر ہو چکا ہے۔ ناظرین، جس طرح منہ بولی بہن مشہور و معروف ٹک ٹاکر کنول آفتاب کے اوپر رجب بٹ تنقید کرتا ہے، تھوڑا مارنے والی کیا بات ہے، کنول آفتاب کیا بولتی ہے، پہلے یہ ویڈیوز کا کلپ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد اور بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس چیز میں نا آپ کی سراؤنڈنگ بھی بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد بغیرت لوگ ہیں جن کو بس اپنی ماں بہن سے پیار ہوگا، لوگوں کی ماں بہن سے نہیں پیار، تو وہ آپ کو بھی برباد کر دیں گے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد اچھے لوگ ہیں جو اپنی ماں بہن اور دوسروں کی ماں بہن کو سانجھی سمجھیں گے نا، تو وہ آپ کی زندگی سنوار دیں گے۔ اگر ایک گروپ میں ایک بندہ کام بھی خراب کوئی کرے گا نا، دوسرا بندہ، تو جیسے ذوالقر کے جتنے بھی دوست ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیوز کا کلپ ملاحظہ فرما لیا۔ مشہور ٹک ٹاکر کنول آفتاب نے چٹا چٹا کھول کے رکھا ہے۔ ابھی تو شروعات ہے، یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے۔ آپ جو آگے کے دیکھتے جائیں کہ ہوتا ہے کیا۔ اس کے بعد رجب بٹ کیا کہتا ہے، رجب بٹ کا پہلے بیان سن لیجیے۔ مجھے آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی جو سوشل میڈیا پہ جو بہنیں آپ کی بنی ہوئی ہیں، کیڑیاں بہناں، آپ کو پتہ ہی آپ نے بنائی ہوئی سوشل میڈیا پہ 100 کالڈ بہنیں ہیں، وہ آپ کے بھائی بہنیں آپ نے جو بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ کے یاروں دوستوں کو بغیرت کہہ رہی ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، آپ کیا کہو گے؟ اب آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ یہ جو میری 100 کالڈ بہنیں ہیں یا پھر جو میں نے بھائی بنائے ہوئے 100 کالڈ، دیکھو میرا کام تھا رسپیکٹ دینا، میں نے رسپیکٹ دی، ان کو راس نہیں آئی، انہوں نے ساری سٹوری دیکھے بغیر ہی وومن کارڈ پراپر پلے کیا، ٹھیک ہے۔ میں ایک ہلکا سا پیغام، ایک چھوٹا سا پیغام دیتا ہوں کہ میں اس بار جو ہے نا وہ چھوڑ رہا ہوں، میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو کہ آپ بہت بخوبی جانتے ہیں۔ 12 سال 10 سال آپ لوگوں کو ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ کھجل ہوتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ تیسرا سال ہے پرونے کا نا، تیسرا سال ہے، سمجھ لگی ہے اپنے یار۔ وہ میری بہنیں تو ہیں لیکن خیر آنٹیاں ہیں، کوئی ان میں ایک بھی لڑکی نہیں ہے، کوئی ایک بھی لڑکی نہیں ہے، ساری آنٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری آنٹیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے بندے ان کی ماؤں سے الگ کر دیے ہوئے ہیں۔ ان کو پسو پڑ گئے تھے، اسی چیز کے پسو پڑ گئے تھے کہ کتنے اویئرنس نہ کسی شاید دے دے کہ ماں پیو دا بھی رائٹ ہوتا ہے اور بیٹے نے ہی دینا ہوتا ہے۔ جو ماں اپنا پیٹ کاٹ کے بیٹا نکالتی ہے نا، قبر کی مٹی تک آپ اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری آنٹیاں وہ ہیں جو میرے اوپر بول رہی تھی، جنہوں نے اپنے شوہر ان کی ماؤں سے الگ کیے ہوئے ہیں۔ ماواں پنڈ رہندیاں نے تے اے جڑا نا بہریا ٹاؤن چ بندیاں نوں لے کے رہندیاں نے، یا کرنے والے ہیں یا کیے ہوئے ہیں۔ بالکل ان کی زندگی بہت اچھی ہے، پیچھے ماں مرتی رہے کوڑتی رہے، 30 سال کا منڈا وکھرا ہو گیا، عید سے برات ملنا۔ آپ نے رجب بٹ کبھی دوست حیدر کے ساتھ بیٹھ کر کیا کیا آنٹیاں بول رہا ہے، اور اپنے والدین سے دور کر کے اپنے گھر والوں کو DHA میں مکان لے کر وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، اور اپنے بوڑھے والدینوں کو پوچھتے تک نہیں ہیں، وہ گاؤں میں رل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا بولا یہ سارا آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد
जुल्करनैन ने क्या बोला कि जुल्करनैन ने सारा चट्टा खोल के रख दिया हूँ। ये पहली जो वीडियोस है ये सुने कि जुल्करनैन ने क्या कहा कि हमने तुम्हें फर्नीचर लेके दिया और फलां बंदे के पास लेके गए और उस बंदे ने बोला कि आप रजब भट्ट जब गया उसके पास तो रजब भट्ट को उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। रजब भट्ट क्या कहता है कि कहता है जो पुराना है 3 सालों में कामयाब हो गया है, कौन सा बम फोड़ दिया है। उसके बाद जुल्करनैन की जब एंट्री होती है तो उसने बड़े बड़े इंकिशाफात कर दिए हैं। पहले ये वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। दिख रहा था कि ये अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे, वो मेरी जान है, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता, तेरी शादी के कपड़े, तेरी वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसकी शादी है। खासकर तेरा जब निकाह भी था ना तब भी मेरी वाइफ का ये वॉइस नोट पहले तुम लोग सुनो। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो ज़रा, उसका भी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तूने उसके साथ कोई सीन करना है क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। तभी मेरी वाइफ एक ब्यूटी प्रोडक्ट वाले को मैसेज करती है स्पेशली इस बंदे के लिए और अभी कहता फिर कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया। इसने जब अपना पहला घर बनाया था ना, इसके पहले घर में भी फर्नीचर इसका दिलाने के लिए मैं इसको अपने साथ लेकर गया था। हनान के आगे हाथ जोड़े कि प्लीज इसको थोड़ी बहुत रियायत कर दे, इसके साथ थोड़ा बहुत कोलैब कर ले, थोड़े बहुत ये तुझे पैसे दे देता है तो इसको फर्नीचर दे दे इसके नए घर का। तो हनान ने मेरे कहने पर तुझे तेरे नए घर का फर्नीचर दिया। फिर उसके बाद जब तूने दूसरा घर जहां पर अभी आप रहते हैं बादशाह सलामत का महल, उस घर में भी जब तूने वो घर बनाया तो तब तुझे फर्नीचर की जरूरत थी तो तू सीधा हनान के पास चला गया था। हनान ने तुझे कहा भाई मैं तुझे नहीं जानता ना, मैं तुझे ऐसे फर्नीचर दूंगा, जा जुल्करनैन को अपने साथ लेकर आ, फिर मैं तुझे फर्नीचर दे दूंगा। फिर तूने मुझे कॉल की, फिर मैं तेरे साथ गया, जाकर मैंने तुझे फर्नीचर हनान से दिलवाया, तब तू फिर हनान से खुद ही डील करने की कोशिश कर रहा था तो हनान ने तेरा मुंह रोक दिया था कि चुप कर जा, जुल्करनैन जो कहेगा वो करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। देख जिस फर्नीचर पर तू सो रहा है ना वो भी तुझे मैं ही अपने साथ लेकर। जी नाज़रीन, आपने जुल्करनैन सिकंदर की बड़ी तहलका खेज इंकिशाफात वाली वीडियोस सुन ली, देख ली, 16 लाख फर्नीचर वाली, उसके बाद शादी की शॉपिंग, बड़े बड़े और भी बड़े बड़े हकायक हैं। उसके बाद रजब भट्ट की एक जो वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई है वो भी सुनाता हूँ, ये आपने सुन लिया। उसके बाद एक और तहलका खेज आपको वीडियो सुनाता हूँ कि जुल्करनैन क्या कह रहा है थी कि ये ट्रिक करो, ये ट्रिक अपनाओ, फिर इसके व्यूज आते थे। पहले इसके व्यूज नहीं आते थे। जुल्करनैन, सिकंदर और कंवल आफ्ताब ने मिलकर इसके यूट्यूब चैनल को यानी कि एक ऐसी ट्रिक बताई जिसकी वजह से उसके व्यूज आना स्टार्ट हुए। फिर इस बंदे में इतना एटीट्यूड आ गया और ये जिस जगह पे खाता है उस जगह पे छेद करता है, उस जगह पे मूत करता है। ये मशहूर मरूफ जो टिकटॉकर है जुल्करनैन सिकंदर ने किस तरह धोकर इस तरह रख दिया कि सारे पूरे जितने टिकटॉकर हैं वो खराब हैं और आप ठीक हो। आप चीज क्या हो? आप अगर फैमिली के ऊपर अटैक करोगे तो हम भी आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये जुल्करनैन सिकंदर कह रहा है। पहले ये वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। होता है ना, ये पिंकी भी जब पहले दिन आया था ना तो तब ये हमारे साथ फोटोज लेने को तरस रहा होता था कि जब भी रजब फ्री हो तभी जल्दी मेरी पास फोटो बना दे, इनके साथ मेरी पास फोटो बना दे। इतनी औकात थी मेरी जान तुम्हारी। तुम लोग तो यहाँ तक गिर चुके हो कि वो तेरा दोस्त, वो क्या बोलते हैं, पिंकी, कपड़े तक तुम लोगों ने अपने उतार दिए और अपनी ये वाली वीडियोस भी तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दी सिर्फ और सिर्फ पैसे और फेम की लालच। यार बड़ा पैसा पैसा करता है यार, उन पैसे देना इज्जत खरीद के वहां ना नहीं खरीद सकता मेरी जान, गालियां खाएगा और ता क़यामत गालियां खाएगा। कहता है मैं सबसे महंगा यूट्यूबर हूं, तू सबसे सस्ता यूट्यूबर है। मेरे दोस्त इतने मेरे साथ संतेर हैं कि क्या बताऊं। और मेरी जान है, तू हमारे तरले करता था कि मेरे दोस्तों के पॉडकास्ट कर लूं। मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ विद प्रूफ कर रहा हूँ, मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ पड़ा हुआ है। तू कितना सगा है अपने दोस्तों के साथ और तेरे दोस्त तेरे साथ कितने सगे हैं कि तेरे दोस्त जो अभी रिसेंट ब्लॉग में जिसमें तू औरतों के लिए बुरे अल्फाज यूज कर रहा था ना, उसी रिसेंट ब्लॉग में तेरा एक दोस्त बैठा हुआ था जो कह रहा था कि रजब भाई तू बड़ी जल्दी किसी पर एतमाद कर लेते हैं। वो तेरा दोस्त और एक और तेरा दोस्त उसी का ही पुराना दोस्त वो मेरे पास आकर बैठे हुए थे और तेरी इतनी इतनी बातें वो मुझे बताकर गए थे। तुझे मैं यहाँ पर अगर सुनानी शुरू करूँ ना तो तन्नू भी पता लग जाए कि किन्ने हो तेरे सगे ने, और उसके बाद तेरी अगर बातें मैंने उनको अभी यहाँ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सुना दी ना तो उनको भी पता चल जाएगा कि तू उनका कितना सगा है, क्योंकि तूने भी मेरे साथ उनके मतलब बातें की हुई हैं। तेरे दोस्त आकर जब मुझे बताते थे ना कि ये तो हमें यूट्यूब का व्लॉग नहीं करने देता, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम व्लॉग करेंगे तो इसके व्यूज कम हो जाएंगे, ये भी पैसा कमा लेंगे, ये मेरे बराबर आ जाएंगे। तो ये निहायत ही घटिया और लालची आदमी है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, ये हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। ये तेरे दोस्तों के अल्फाज हैं। कह रहा था ना कि वो छोटे छोटे इवेंट करते हैं, मुझे इनके स्टैंडर्ड का पता चल गया था, इसलिए मैंने कहा कि यार अब इनसे मुझे रिश्ते ही तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं इनके छोटे छोटे इवेंट नहीं अटेंड कर सकता। मेरी जान तेरी औकात ही नहीं है कि तू हमारे इवेंट ना अटेंड करता, हम तुझे बुलाते ही नहीं है। सही है, इतनी तेरी औकात है। पिछले 1-1.5 साल से हमने तुझे इग्नोर करना शुरू किया है जब से हमें पता चल गया कि तू फितना फैमिली है। इसको मैंने अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बहन, पिंकी भी बहन है, गदल बहन, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने इन्विटेशन शेयर किया। फिर उसके बाद उनका मुझे वॉइस नोट आता है कि वो रजब भाई को तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कंवल की बर्थडे है, तो वो कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो इन्विटेशन ही नहीं आया। तो फिर मैं ढीठ पड़ जाता हूँ कि यार देखो ये मुझे खुद बोल रहे हैं कि रजब को मैंने इन्वाइट नहीं किया, नहीं तो इनको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर देना चाहिए कि हम उसको नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था और हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं थी। फिर मैं उसी टाइम में रजब को इन्विटेशन भेजता हूँ, तो वो फिर से वही काम करता है, कुछ 3 से 4 बिन
बुलाए मेहमानों को अपने साथ ले आता है, वो बैठते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो नखरे दिखाते हैं आपको बिला वजह के, थोड़ी सी बोता पाइए ना तो फिर बताएं। नाज़रीन, आपने बड़े बड़े तहलका-खेज़ इंकिशाफात सुन लिए, किस तरह जुल्करनैन सिकंदर आग बगोला हो रहे हैं और किस तरह तनकीद का निशाना बना रहे हैं रजब भट्ट को कि आए दिन तुम इस तरह के वाक़यात करते हो, और चाहे तुम्हारा घर का मैटर है, चाहे तुम्हारा फैमिली मैटर है, और तुमने हमें तुम्हारा घर बचाने के लिए हर कोशिश की है, लेकिन तुम हमारी बात को बुरा मना गए और इस लड़ाई को किस महाज तक पहुंचा दिया है, और तुम फैमिलियों के अंदर इन्वॉल्व होकर इस तरह की तनकीद करोगे तो तुम्हारे मैं सारे चट्टे चट्टे खोल के रख दूंगा कि तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इसने कहा है, जुल्करनैन सिकंदर ने कहा है। उसके बाद कवल आफ्ताब ने कहा है कि तुम एक शराबी और जानी हो। ये भी आपने वीडियोस वायरल सुनी होगी। उसके बाद जब रजब भट्ट आग बगोला होता है और वो कहता है कि मैं थोड़ा मारूंगा, मैंने सर पे बिठाया है। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जितने इन्फ्लुएंसर्स मेरे खिलाफ सारा एक कैंपेन चला रहे हैं ना भजन, आप और वो जो पीछे एक आंटियों का टोला बैठा हुआ है, आप भी भाड़ में जाए मेरी तरफ से। ना मैं यहाँ पर आप लोगों से दोस्तियां करने आया हूँ, ना मैंने आप लोगों से दोस्तियां करके रजब फैमिली बनाई है, ना मुझे आप लोगों की जरूरत है। एक छोड़ के चार कैंपेनें चलाएं। मैंने गिरना अपनी रब की मर्जी से ही है। आप लोग टूई का भी जोर लगा लें, ठीक है, ये मेरा बाल भी नहीं पुट सकते, ठीक है। तगड़े होके आ जाओ, और कोई अगर इन्फ्लुएंसर रह गया ना वो भी मिल जाए। नाज़रीन, देख सकते हैं बड़े बड़े इंकिशाफात, बड़े बड़े तहलका खेज इंकिशाफात आपने सुन लिए, चिट्टा चट्टा जो भी खोल के रखा। रजब भट्ट ने एक कोई वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, उसमें ये मुलाजा फरमाइए। उसके बाद आपसे इजाज़त भी चाहते हैं, और आप पहले ये मुलाजा फरमाइए जो रजब भट्ट ने कहा। ये एंड वॉचिंग, तगड़े होके आए, खैर से आए, हमारे लिए कौन सा कोई नई बात है। आए पहले बथेरी लंबी लाइन है, बस एक न्यू फैमिली का एडिशन हुआ, हमें कोई परवाह नहीं ब्रो, आ जाओ। जब आप किसी को उंगली करते हैं ना तो चप्पा जो है ना वो लेने की हिम्मत रखा करें, अपनी दफ़ा बड़ा केला आपको चुभा। यानी कि मैं तो पहले लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप भी एक फैमिली इन्वॉल्व हो रही है लड़ाई के लिए, तो आप भी आ जाओ, आपको भी बड़े अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। ये रजब भट्ट का कहना है। मैंने आज तक रजब भट्ट के खिलाफ वीडियोस नहीं बनाई हैं। मैं जब रजब भट्ट का 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ था, लाहौर कच्ची कोठी पंजाब सोसाइटी में उस टाइम रहता था, मैं आपको वो चीज बताऊंगा, असल हक़ाइक़ बताऊंगा कि मैं उसके लिए क्या लेके गया था और मेरे गिफ्ट के साथ क्या हाल हुआ था। मैं ज़ातियात पे नहीं जाना चाहता, मुझे बहुत दुख लगा था। वो दिन गया, मैं रजब भट्ट के पास नहीं गया। यकीन करें, जब उसका 1 मिलियन उसका सब्सक्राइबर हुआ था, मेरे पूरे चैनल में जाके देख लें, गालबन आपको उसके खिलाफ कोई वीडियोस नहीं, अभी भी ये खिलाफ नहीं। मैं तो जो मेरे पास प्रूफ है वो मैंने अपनी ऑडियंस को दिखाए हैं कि लोग हाथी वाला हिसाब बनाते हैं कि खाने वाले दांत और होते हैं, दिखाने वाले और होते हैं, और अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना या गालम गलोच करना ये किसी को भी जेब नहीं देता। जब आप एक अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है, इज़्ज़त से नवाजा है, तो इंसान को भी आराम से बैठ के खाना चाहिए, ना कि आप जो है ना आए दिन इस तरह के तनकीद की ज़द में आ जाते हैं। कभी शहजाद भट्टी के साथ इस तरह करते हैं, कभी जाके बहर में इस तरह के कुरान पाक की बहरौमती करते हैं, और कभी नमाज की बहरौमती करते हैं। तो मैंने आज तक आपके खिलाफ कोई वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन रजब भट्ट साहब देख लें कि आप एक घर में बैठकर मुंह बोली बहन के साथ, घर में एक इंसान, मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, जब एक इंसान किसी घर में जाता है, उस घर का नमक खा लेता है, तो बंदे की गर्दन कट जाए वो जवाब नहीं देता। और मुंह बोली बहन थी, उनकी बेटी के लिए कितने कितने गिफ्ट लेके जाता था, और कवल आफ्ताब की भी बड़े बड़े जो ना इस रजब भट्ट पर एहसानात थे। तो ये हमारे पास प्रूफ थे, वो अपनी ऑडियंस को असल हक़ाइक़ दिखा दिए हैं। चाहे गालियाँ पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन तह तक जाया करें और असल हक़ाइक़ तक जाया करें कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, और व्यूज़ के चक्कर में लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये देख लें, ये टिकटॉक एक ऐसा फाशिज्म फैल चुका है और ऐसी गंदगी बेहूदगी फैल चुकी है कि लोग एक दूसरे पर तनकीद ज़्यादा, एक दूसरे पर अल्फाज कस रहे हैं,
یہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. چاہے کسی کی فیملی کا میٹر ہے، چاہے جو بھی معاملات ہیں، ان کو اپنے آپس میں سولو کرنے چاہیے، نہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ لے کے آئیں اور لوگوں کو سنائیں اور تماشا بنائیں. ناظرین، ہماری ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہم نے بڑے بڑے حقائق آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ نے لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.